प्रणाम सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Characteristics of Indian economy, demographic characteristics. Characteristics of Indian economy, demographic characteristics. हम लोग इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हुए हैं। जी सर।
characteristics of Indian economy. Part 2. Characteristics of Indian economy, Part 2. Demographic characteristics of Indian economy. Population, means persons. Population means persons living in the territory of India. Population means for persons living in the territory of India. As population is one of the necessary factor of the country, of the state. Any state or country requires, number one, a fixed territory. A fixed territory a fixed territory of population a population, a fixed territory, a population
government, a government. Number 4, sovereign. Sovereignty. These are four factors for creation of a country. अभी कितना कंट्री है वर्ल्ड में? 203 तो है सर, 203 है? मेंबर कितना है IMF IBRD का? 193 193 है। वही कंट्री कहलाएगा। वो सब बाकी सब जो है अपना बना लिया है, रिकॉग्निशन नहीं है उसका। सब छोटा छोटा जो टापू सब है ना, वो सब अपने को कंट्री घोषित किए हुए है। लेकिन जब तक वो मेंबर नहीं बनता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का, स्पेशली IMF IBRD का, तो इंडिकेटर है कि वो पैसा रुपया उसी से उसको मिलता है। इंटरनेशनल रहेगा तभी मिलेगा। देयर आर 193 countries as a member of IMF and IBRD. तो पॉपुलेशन को कोई छोटा फैक्टर है या पॉपुलेशन कोई गिरा पड़ा हुआ चीज है, ये नहीं है। पॉपुलेशन बहुत बेसिक चीज है जिससे कंट्री का निर्माण होता है। बिना पॉपुलेशन का कंट्री हो ही नहीं सकता है। इसलिए पॉपुलेशन मीन्स persons living in the territory of India, as population is one of the necessary factor of the state. Any state or country requires number 1 fixed territory, number 2 a population, number 3 a government, number 4 sovereignty. There are 4 factors for creation of a country. There are 193 countries as a member of IMF IBRD. कहता है भारतवर्ष में पॉपुलेशन का बड़ा ही महत्व है और किसी भी कंट्री को वर्ल्ड बनने के लिए सबसे पहली जरूरत है वो है आपको पॉपुलेशन। एक टेरिटोरी हो, फिर एक पॉपुलेशन हो, एक साइज पॉपुलेशन का हो जो रह रहा हो, एक सरकार हो, चुनी हुई सरकार जिसकी मान्यता हो, और उसके बाद तब सॉवरेंटी हो। सॉवरेंटी का मतलब हो गया कि उसके आंतरिक चीजों में कोई भी कंट्री दखल नहीं देगा, तो सॉवरेन स्टेट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन का जो फीचर्स है, फीचर्स ऑफ इंडियन
demo features of Indian demographic. Indian demographic, features of Indian demographic condition. Number one, demographic dividend. डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या मतलब हुआ कि कितना परसेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड है मोती? एग्जैक्ट डाटा तो नहीं मालूम है सर। परसेंटेज एग्जैक्ट डाटा नहीं मालूम है सर। सर 65% ऑफ पॉपुलेशन इज यंग, तो वही है। हाँ वही है। अभी इंडिया में ही है, ये दिन में भी गायब हो जाएगा जब उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। 65% of Indian population is on an average on an average 20 to 35 years. 65% of Indian population is on an average 20% to 35 years old. Young people are living in India. Living in India. This is called demographic dividend. For India. This requires
skill formation. A skill formation. Education and training. This requires a skill formation, education and training, and productive utilization. This requires a skill formation, education and training, and productive utilization of India. तो है डेमोग्राफिक डिविडेंड, लेकिन कंडीशन क्या है इसका? Population under poverty line. As per the methodology of the Suresh Tendulkar. Suresh Tendulkar Committee report. As per the methodology of Suresh Tendulkar Committee report, the population below the poverty line, below the poverty line in India was
354 million. .6% of the population. Of the population. In 2009, and was 269 million 21.9 of the population in 2011 12. 11, 12. 2012 बहुत सारा आंकड़ा इधर उधर कराता है, लेकिन खास कमेटी का आंकड़ा है, इसी पर लोग प्रोजेक्शन करता है आगे के समय का, इसलिए हम लोग इसी को देंगे। और ये काफी सक्सेसफुल सुरेश तेंदुलकर कमेटी का रिपोर्ट था। तो जो हमारा एक और है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि युवा वर्ग है 35 इयर्स का आदमी हमारे यहाँ 65%। दूसरी ओर है कि जो गरीब है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाला है 29.6% ऑफ पॉपुलेशन। मतलब उसको समझ लीजिए कि 29.6 का मतलब हो गया 30%, और आने वाला वर्ष में थोड़ा घटा दिया है तो अभी 22% पॉपुलेशन। तो ये हमारा फीचर है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? ना सर। समझने में नहीं कोई सर। दिक्कत? नहीं सर। इंग्लिश में या हिंदी में जैसे लिखना हो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बात इसी जी। फॉर्मेट में होगा कि जनसंख्या क्या है। तो जनसंख्या आदमी का समूह है जो कहीं रहता है। कहाँ रहता है? एक निश्चित टेरिटोरी में रहता है, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। इधर उधर पेड़ पर बैठा रहेगा तो पॉपुलेशन नहीं माना जाएगा। वो पॉपुलेशन है कि किसी निश्चित टेरिटोरी में रह रहा हो, पेड़ पड़ा जहाँ है उतर के दूसरे जगह चला जाएगा। तो ऐसा जानवर नहीं। इसको आपको एक बाउंड्री खींचना होगा टेरिटोरी का। तो टेरिटोरी हो गया। अब कैसे बांग्लादेश को घेर दिया और हो गया, हम लोग भी मान गए कि चल भाई वो पाकिस्तान हो जाएगा। अब बाद में फिर युद्ध करके वो पाकिस्तान नहीं होकर के फिर हो गया बांग्लादेश, और सारा देश जो है उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। तो ये पॉलिटिकल क्रिएशन होता है। कंट्री जो है वो पॉलिटिकल क्रिएशन है। कंट्री क्या है? पॉलिटिकल क्रिएशन है। आज यूएसएसआर के बारे में हम लोग जानते हैं, इतना बड़ा देश था कि उसको सुपर पावर कहा जाता था। पूरे विश्व में 2 ब्लॉक बटा हुआ था,
एक पूंजीवादी देश था यूएसए और दूसरा था समाजवादी देश, कम्युनिस्ट देश यूएसएसआर। यूएसएसआर इतना पावरफुल था कि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में हॉटलाइन था कि कोई भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो डायरेक्ट हॉटलाइन से बात किया जाएगा, और इतना पावरफुल था। यूक्रेन का पावर, रशिया का पावर बहुत ज्यादा मजबूत था और विश्व में दो शक्ति हो गई थी। लेकिन अमेरिका का पॉलिसी देखिए कि वो ताश के पत्ते के तरह उसको बांट दिया और एक यूएसएसआर कंट्री को तोड़ा और टूटा, वो वहां के समर्थन से तोड़ दिया और हो गया 15 कंट्री। तो जब आपको आपके सर्वाइवल पर आ जाएगा कि बचेंगे कि नहीं, तो तुरंत कहेगा ठीक है बांट दीजिए। एगो दादा जिंदा है तो मकान पूरा एक समूह है, और जैसे दादा मरा तो वो मकान को 16 भाग, 15 भाग, 14 भाग में काट के छोटा छोटा 25 गज का मकान बना दिया दिल्ली में कि हमारा अपना हिस्सा रहेगा। तो उसी तरह से होता है कि कंट्री में पॉपुलेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और पॉपुलेशन का तब होता है जब वो स्किलफुल हो। तो हमारे यहाँ यूथ हो गया है अभी 65% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन यूथ है। हम लोग उस पर काफी गर्व करते हैं कि हमारे देश में तो कितना मजबूत पॉपुलेशन, सो देख लीजिए कि दिल्ली से पैदल चल के कहाँ चलाया, पटना चलाया। तो पटना से दिल्ली आने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि भारत का विकास हो गया है, रोड बना हुआ है। पहले जमाने में वो आ नहीं पाता, रास्ता में उसको डाकू मिल जाता, जानवर मिल जाता, लेकिन चला कहाँ, तो रेलवे लाइन पर चल रहा है या रोड पर चल रहा है, नेशनल हाईवे पर चल रहा है, उस पर एकदम बना हुआ रोड है। ये भी एक फैक्टर है कि विकास के कारण वो पैदल चल के चलाया। इसको निगेटिव में देखिएगा तो खराब बात है, आप पॉजिटिव में देखिए कि पटना से दिल्ली जाने का जो व्यापारी पहले 100 साल पहले जाते थे तो काफला में जाते थे, अब पैदल जाते थे। 1853 में रेलवे का आविष्कार हुआ हमारे यहाँ। कब हुआ आविष्कार सुनीता? 53 में जी 53 में पहली बार। 1853 में। तो 1853 में पहली बार वहाँ मुंबई में थाने में शुरू किया। आज 54 में ये कलकत्ता, आज 56 में मद्रास। तो उसके पहले का चले जाइए, अभी जैसे 2020 है तो उसी 1720 चले जाइए, तो 1720 की स्थिति में क्या होगा? गाँव गाँव जंगले जंगले लोग जाता था, रास्ता बना हुआ था, लेकिन डर किसका रहता था? डाकू का डर रहता था, जानवर का। तो ग्रुप में लोग चलता था, खाते पीते अपना कलकत्ता पहुंच गए, बिजनेस किए, फिर वहां से माल लेके खाते पीते आए। उसी तरह से आपको चाइना चला जाता था, रोहतांग पास की ओर से चाइना का बना हुआ है रास्ता, सिक्किम में जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा रोहतांग पास, वहां से रास्ता बना हुआ है, चला जाता था। तो था आज विकास का दौर ऐसा हुआ कि नेशनल हाईवे है, डायरेक्ट कार स्टार्ट कीजिए, दर से आप चलाइए। तो कार स्टार्ट नहीं किया, वो अपना पैर जो है, 2 पैर को गांव में कहता है 11 नंबर। हम समझे नहीं क्या कर 11 का, 11 नंबर से आए। तो 11 नंबर मतलब वो पैर से, अपना पैर से चल के आए और चल के चलाया। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन का जो आकार है वो आकार भर है, उसके स्किल का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और जिसका स्किल फॉर्मेशन हो गया तो ब्रेन ड्रेन हो गया, चला गया बाहर। जितना अच्छा क्वालिटी का इंजीनियर है वो पटना में है कि यूएसए में है? कहाँ चला गया बिहारी? इंडियन जो है यूएस चल गया। चले जाते हैं सब लोग, 4 में 3 चले जाते हैं। ये डॉक्टर इंजीनियर सब। हाँ, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ कि वो रूस में पढ़ा हो, वहीं नौकरी कर सकता हो, चलाया इंडिया। सुनीता? जी सर, हस्बैंड ही है। इसके हस्बैंड जो है ब्रेन ड्रेन नहीं किए, ब्रेन वापस लेके आ गए हैं इंडिया में। तो इसलिए कहता है कि डेमोग्राफिक डिपेंड हो गया, और दूसरा हो गया पॉपुलेशन अंडर पॉवर्टी लाइन। अब तीसरा हम लोग जो लिखेंगे, तीसरा
थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इसको बोला जाएगा हाई टोटल फर्टिलिटी रेट। हाई टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट का क्या मतलब हो गया? टोटल फर्टिलिटी का मतलब TFR। हाई फर्टिलिटी, हाई टोटल फर्टिलिटी TFR। ये TFR है क्या? TFR क्या है? TFR का क्या परिभाषा होगा? TFR का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। मीनिंग ऑफ TFR। टोटल फर्टिलिटी रेट TFR। TFR क्या है? हाई टोटल फर्टिलिटी। तो TFR का हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन born। टोटल नंबर चिल्ड्रेन born और likely to be born। likely to be born। total number of children born or likely to be born in her lifetime। in her lifetime। in her lifetime if she were subject to the prevailing rate, to the prevailing rate। Subject to the prevailing rate of age specific fertility। prevailing rate of age specific fertility in the population। in the population। total number of children born or likely to be born in her lifetime if she were subject to the prevailing rate of age specific fertility in the population is called total
फर्टिलिटी रेट TFR। TFR का मतलब हो गया, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब हो गया कि एक महिला को उसके पूरे जीवन काल में कितने बच्चे हुए या होने वाले हैं, इसका कैलकुलेशन किया जाता है, पूछा जाता है, तो इसी को पुकारा जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है में काफी परिवर्तन हुआ है। जब देश आजाद हुआ था उस समय हम लोगों का फर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत हाई था, लेकिन धीरे धीरे फर्टिलिटी रेट पॉपुलेशन पॉलिसी जो हम लोग का है उस कारण से परिवर्तित हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन born or likely to be born in her lifetime if she were subject to the prevailing rate of age specific fertility in the population is called total fertility rate। हम लोग क्या माना जाता है कि मैरिज का लड़की का आयु कितना रखा गया, 18 रखा गया है ना? जी सर। वैसे 18 से पहले भी बच्चा हो सकता है, लेकिन वो लीगल नहीं होगा, मैरिज करना नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि 18 to 39 ईयर्स जो है, 18 to 39 ईयर्स, 39 सबसे अपर है, तो कहता है कि 18 से 39 वर्ष तक एज स्पेसिफिक है, इसमें काउंट किया जाएगा 18 से 39 तक। और मैरिज का जो कानूनी रेट है ईयर है वो है 39 18। तो इसलिए कहता है कि अगर हम कानूनी ही रेट ले लें तो 18 बरस 18 ईयर्स से 39 ईयर्स का क्लास इंटरवल बना के वो पूछेगा और पूछ करके निकालेगा। तो इसमें जो है इसी के बीच में निकाला जाएगा TFR। अब देखिए TFR जो है अभी हाईएस्ट किसका है? बिहार का तो 3.5 है। 3.5 है। कब का आंकड़ा बता रही हो? 2011 की जनगणना। हाँ, तो हम आपको बता रहे हैं अभी लेटेस्ट जो है जुलाई 17। जुलाई 17 2020 2020 इसी का आंकड़ा है। अब देखिए इस आंकड़े में कह रहा है कि अर्बन इंडियाज फर्टिलिटी रेट, अर्बन इंडियाज फर्टिलिटी रेट पहले लिया जाता है। पहले किसको लिया जाता है? अर्बन 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 इंडियाज फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट मतलब कि अर्बन इंडियाज जो होगा वो फर्टिलिटी रेट का मतलब समझिए TFR। TFR is 1.7
1.7 birth, 1.7 births per woman, per woman, 1.7 birth per woman। ये है हमारे यहाँ का। अर्बन इंडिया फर्टिलिटी रेट इज 1.7 बर्थ पर वुमन। अब इसमें है कि बिहार का, तो बिहार तो हर चीजों में आगे रहता है। तो पहले उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश को पीछे करते हुए बिहार है पिक। पिक मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा। बिहार है पिक TFR इक्वल टू, तुम्हारा जो आंकड़ा वो सही है लेकिन पुराने डेट का है सर। अब बिहार का भी है ना, तो 3.2 है। नहीं, 2.5 इन बिहार। 17 जुलाई 2020 का रिपोर्ट आया है। लेटेस्ट है बिहार लेटेस्ट है। बिहार 3.2 3.1 इसी से पर बिहार लटका हुआ था। अभी जो आया है तो बिहार है TFR इक्वल टू 2.5। ये है पिक, और लोएस्ट है 1.1 इन हिमाचल। और हिमाचल सर ये ओवरऑल है या अर्बन एरिया का है? अर्बन एरिया ऊपर लिखे है ना, अर्बन। हाँ सर, ठीक है। लोएस्ट सर। ये है नीति आयोग का रिपोर्ट है या इसका रिपोर्ट? गवर्नमेंट पॉपुलेशन का है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का है। नेशनल पॉपुलेशन डेमोग्राफिक इंस्टीट्यूट है। हिमाचल का है लोएस्ट 1.1। हिमाचल TFR है 1.1। ये अर्बन का है। और सबसे रिपोर्ट क्या है महत्वपूर्ण, कि अर्बन पॉपुलेशन इन 18 स्टेट्स हैज ए बिलो रिप्लेसमेंट रेट। तो अर्बन इंडिया फर्टिलिटी रेट तो आप जान गए 1.7 है। रूरल इंडिया फर्टिलिटी रेट रूरल इंडिया सर क्या बोले कि 18 स्टेट का क्या है? वो अभी छोड़ो ना, अभी नहीं बोल रहे, वो नीचे बोलेंगे, उसके पहले डिफिनीशन देंगे तो। रूरल इंडिया TFR टोटल फर्टिलिटी रेट TFR is equal to 2.4
अब एक वर्ड है इसमें जिसको बोला जाता है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। RLF इसको क्या कहेंगे? RLF रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी RLF। रिप्लेसमेंट रेट फर्टिलिटी था RRF। यहाँ लेकिन रिप्लेसमेंट लेवल ही सब जगह यूज किया है। तो कहता है कि TFR हम लोग जान गए, टोटल फर्टिलिटी रेट। TFR of about 2.1 children per woman is called replacement dash level फर्टिलिटी। तो अभी जो हुआ है वो बड़ा ही अच्छा रिपोर्ट आया है। क्या रिपोर्ट आया है? TFR 2.1 children per woman is called replacement level fertility 2.1। आप देखिएगा, हम दो हमारे दो कहा गया था ना, कहा गया था जी कि सर। नहीं? जी क्यों सर। कहा गया? कि हम दो हमारे दो रहेगा और लिंग को देख के भ्रूण गर्भावस्था में खत्म करने का कोशिश नहीं करे तो 2.1 चिल्ड्रन पर वुमन रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है, मतलब एवरेज 2 रखिए तो सबको 2 बच्चा अगर होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो ऑल इंडिया लेवल में वो पॉपुलेशन कभी भी आपका घटेगा नहीं, स्थिरता की ओर रहेगा। और इसी को कहा जाता है कि 1 मदर इज रिप्लेस्ड बाय 1 डॉटर। तो ये रिप्लेसमेंट लेवल है। कहता है कि 1 मदर
one mother is replaced on average, one mother is replaced by one mother is replaced by one daughter. This means population stabilization. पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। बहुत सारे अमेरिका में क्या हो गया, अब अभी कोविड-19 से बहुत सारा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन वन मदर इज रिप्लेस्ड बाय वन डॉटर, कंट्री एज ए होल में ये काम हो रहा था। और वहां कोई मैरिज का जो हम लोग का जैसे टिफन दिखाया जाता है, तो वहां विदेश अमेरिका में कोई टिफन ऊपर नहीं दिखाता है। शादी का आधार जो है म्यूचुअल कंसेंट है, और वो म्यूचुअल कंसेंट नहीं है तो डिवोर्स है। तो बहुत सारे औरतों के जीवन में एक से अधिक बार डिवोर्स हो गया, और किसी का ऐसा रहा कि नहीं भी हुआ। लेकिन एकदम सिंपल थ्योरी है इसमें, यहाँ ऐसा नहीं है कि 498 लगा के आपको जेल भेजवा देगा। जहाँ डिवोर्स का बात कीजिएगा, लड़की वाला पहला काम क्या करेगा, लड़का वाले के ऊपर केस कर देगा कि डाउरी मांगता है, तो कार मांगता है, तो जेवर मांगता है, मोटरसाइकिल मांगता है। गरीब से गरीब परिवार है उसको जेल भेजता है कि मोटरसाइकिल मांगा है। अब पहले जमाना में लोग साइकिल मांगता था, लेकिन अब जो है मोटरसाइकिल मांगता है, तो किसी को भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से होता था, लेकिन वहां ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां जो स्टेज आ गया है, वन मदर इज रिप्लेस्ड बाय वन डॉटर, दिस मीन्स पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। और TFR अगर 2.1 है तो इसको कहा जाएगा रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। ये जनसंख्या आपका स्थिरीकरण हो जाएगा, वो लेवल आपका मेंटेन रहेगा। तो ये चीज है, इसको लिख लिए ना, हर आदमी का हो गया। जी सर। अब इसी कंटेक्स्ट में हम आपको लिखाने जा रहे हैं कि 18 स्टेट में क्या पोजीशन हो गया है। तो कहता है कि द अर्बन पॉपुलेशन in 18 states, in 18 states of India, 18 states of India has a below replacement level fertility, below replacement level fertility। अभी जो रिलीज हुआ है जुलाई 17, 2020, आपका आ जाएगा, बाजार में भी आ जाएगा जुलाई, देखिएगा इसको, जुलाई 17
2020। तो ये कह रहा है कि 18 स्टेट में रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी के नीचे चला गया है पॉपुलेशन, और मध्य प्रदेश इज एट रिप्लेसमेंट लेवल। और दूसरा क्या बताया कि मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश इज एट रिप्लेसमेंट लेवल, एकदम 2.1 इज एट रिप्लेसमेंट। मध्य प्रदेश इज एट रिप्लेसमेंट लेवल, रिप्लेसमेंट लेवल fertility. Madhya Pradesh is at replacement level fertility, and just 3 states above it. और कह रहा है कि just 3 states are above replacement level fertility. Just 3 states are above replacement level, just above, थोड़ा सा डिसमल में लेवल फर्टिलिटी। तो ये आपको जो है TFR के संदर्भ में बात हुई। पॉइंट नंबर कितना है ये? तीसरा का सर। पॉइंट 3 था। जी सर। सर 3 राज्यों का नाम नहीं है नाम जो नहीं ऊपर है, है। नाम देखना ना, प्रयोक्ता दर्पण आवेगा उसमें उतार लेना। जी ठीक है। नाम जो होगा उसमें उतार लेना, 18 को कौन है, इसे कौन है, वो गूगल में पूछ के देख लेना। लेकिन वो इतना जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगा ना, हम लोग को पॉइंट देना है ना। और लेकिन अपना समझने के लिए देख लीजिए 18 को कौन है। तो ध्यान रखना है 18 बहुत। दूध अगर फाड़ना है कराह में तो 3 गो नींबू डालेंगे कि रस गाड़ेंगे? थोड़ा सा रस गाड़ेंगे। तुम 3 गो नींबू डालने के लिए कह रही हो। ये छान करके निकाला हुआ है जो जाएगा परीक्षा हॉल में कॉपी पर। तो 18 राज्य जो है वो आपको नेचुरली जो विकसित राज्य है वही सब होगा। और ये महत्वपूर्ण है कि
अच्छा, एक बात यहाँ ऐड कर लीजिए, महत्वपूर्ण है भी। ये जो आपको बता रहे हैं, ये आंकड़ा है आपको सितंबर 2019। ये महत्वपूर्ण इसलिए है, उत्तर प्रदेश पहले था नंबर 1 हाईएस्ट में, अब हो गया है बिहार हाईएस्ट में। बिहार का लेवल घटा है, पहले से 3 पर था, अब घट के हो गया है 2.5। लेकिन उत्तर प्रदेश का तो बंटवारा भी हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज का आंकड़ा जो है वो गोल मट्टा कर दिया, तो उससे अब लग रहा है कि भाई उसका ये है। तो हम लोग जरा इसका देख ले कि कहीं डिस्कशन हो, इंटरव्यू सब में बहुत आदमी मान लीजिए इन्फॉर्म नहीं है, तो उसको लगेगा कि कैसा कह रहा है। यूपी में 4 था, कहाँ से गायब हो गया, बिहार से नीचे आ गया है। बिहार का 2.5 है, 2.4 है, मैंने उससे कम है, थोड़ा सा कम है। तो कहता है कि यूपी जो है, इस यूपी में आपको यूपी में 57 डिस्ट्रिक्ट है, 57 डिस्ट्रिक्ट्स। और यूपी का टीएफआर जो है, टीएफआर है ओवर 2.1। यूपी का जो है टीएफआर कितना है, ओवर 2.1। ये सब आपको डिस्कशन में, इंटरव्यू इस समय पूछ सकता है, बहस होने लगे तो इसमें आप जवाब दीजिएगा तो वो अच्छा, उसको अच्छा लगेगा। अब ये है 11 डिस्ट्रिक्ट्स, 11 डिस्ट्रिक्ट्स जो है, ग्यारह डिस्ट्रिक्ट, 57 डिस्ट्रिक्ट टीएफआर जो है ओवर 2.1 है। 11 districts among them have a rate of 4 and above। मतलब वहां का टोटल डिस्ट्रिक्ट होगा 7, 1, 8, 5, 1, 6, 68 गो। तो 68 डिस्ट्रिक्ट में 57 डिस्ट्रिक्ट में टीएफआर ओवर है 2.1, और 11 डिस्ट्रिक्ट में टीएफआर है, टीएफआर ओवर 4। 57 डिस्ट्रिक्ट में टीएफआर है 2.1, ओवर 2.1। आप 11 डिस्ट्रिक्ट में है ओवर 4, 4 से थोड़ा ज्यादा। लेकिन सब मिला करके जब निकाला गया तो वो जो है बिहार का 2.5 पर, बिहार पीक पर पहुंच गया, और उसका 2.4 हो गया, तो बिहार से नीचे आ गया। ये मार्जिनल केस है, दैट इज द स्टैटिस्टिकल जगलरी। स्टैटिस्टिकल जगलरी से ऐसा हुआ, अलग अलग करके निकाला। 57 डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग निकाला, 2.1 है। 11 डिस्ट्रिक्ट का अलग निकाला तो 4 एंड एबव है, ओवर 4 है। और जब पूरा निकाला तो बिहार के नीचे आ गया।
कितना पॉइंट था ये? तीसरा कौन ही सा एलाबोरेट कर रहा था। तीसरा था है? सर। तीसरा तीसरा है सर। तीसरा। हाँ, तीसरा है। अब आपको आ जाएगा चौथा। चौथा पॉइंट जो है वो रिलेटेड है आईएमआर। आईएमआर का फुल क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट इन्फेंट शिशु मृत्यु इन्फेंट दर। मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है आईएमआर, जानते हैं इंटरव्यू में जैसे बोले आप, तो उसे बोली आईएमआर, तो उसमें दूसरा जो रहेगा जिसको नॉलेज उतना नहीं रहता मेंबर को, तो पूछ देगा व्हाट इज आईएमआर। आपको मौका मिल गया, आप जान रहे हैं वही बात वो आपसे मुंह से बोलवाया। तो ये सब ट्रिक रहता है बोलने में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का जगह पर आप जवाब दिए आईएमआर। आईएमआर जब जवाब दिए तो फिर आपको वो पूछेगा कि आईएमआर क्या हुआ था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि बच्चा जो 100 बच्चा जो जन्म लिया, उस 100 बच्चा में वो पता लगाएगा कि लाइव बच्चा जन्म लिया वो लाइव रहेगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। 1000 पे निकलता है, हाँ, 100 पे नहीं। 1000 1000 बोल रहे हैं, तो 100 बोल दिए, 1000 पहले बोल दिए थे। गलत बोला है। तो कहता है कि जब भी हम लोग नापेंगे 1000 पर नापेंगे। 1000 डेथ रेट बर्थ रेट सब 1000 आदमी पर होता है। ये जो है इसमें जो होगा वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का डेफिनेशन क्या हो गया, पूछा है व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट is death per 1000 live birth। Infant mortality rate is death per 1000 live rate। which is called IMR। अब देखिए ईयर IMR। तो ईयर जो है 2008 का लेते हैं तो हो जाएगा 49.4 49.4।
2018 29.9 ये IMR इंडिया हो गया, इन इंडिया। अगर हम लोग ले लें ईयर IMR in year IMR in IMR in Bihar, दो हजार 15 42 2016 38 highest IMR है मध्य प्रदेश। हाईएस्ट MR है मध्य प्रदेश और नागालैंड recorded the best IMR across India. Lowest IMR लोएस्ट IMR है नागालैंड।
लोएस्ट एमआर है नागालैंड, हाईएस्ट एमआर है मध्य प्रदेश। और बिहार का जो है 2016 है, अगर आगे का मिल जाए तो वही दीजिएगा। अभी देखे हैं तो स्टैंडर्ड जो नोटिफिकेशन है 2016 में 38 है, और हम लोग के इंडिया का 29.9 है, मतलब 30 बोलिए 8 का फर्क है। तो ये सब चीज पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। बिहार में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज डेथ पर 1000 लाइव बर्थ विच इज कॉल्ड IMR। अभी इंटरव्यू में पूछ देगा आपको कि अगर मरा हुआ बच्चा हुआ तो उसका काउंट होगा कि नहीं, तब कहा जाएगा नहीं, मरा हुआ बच्चा को काउंट नहीं करेंगे। लाइव बच्चा जन्म लिया और तब आया। कुछ कंट्री में जो है बच्चा का उम्र जो है 0 नहीं रहता है, जन्म लेता है तो उसका उम्र 1 माना जाता है। वो पहले तो था ना, है ना सुनीता? भ्रूण से काउंटिंग। हैं? जी सर। कहाँ है ये? वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में डेथ पर 1000 लाइव बर्थ, तो इसमें क्वेश्चन पूछ देता है इंटरव्यू में कि जो बर्थ होगा अगर मरा हुआ बच्चा हुआ तो काउंट होगा कि नहीं, तो बोला नहीं सर, डेथ पर 1000 लाइव बर्थ, जिंदा बच्चा जन्म लिया तुरंत अगर मर गया तो भी काउंट होगा, लेकिन मरा हुआ पैदा हुआ तो फिर वो लाइव बर्थ थोड़ी हो गया। तो इसलिए इस बात को बोल्डली वहां बोलना है कि डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। अच्छा, हाईएस्ट डेथ रेट जो है, हाईएस्ट डेथ रेट हाईएस्ट डेथ रेट, हाईएस्ट डेथ रेट कहाँ है? इन छत्तीसगढ़। सोचिए, हाईएस्ट डेथ रेट है छत्तीसगढ़। अलग बनवा लिया अपना, और देख नहीं रहा है ठीक से। छत्तीसगढ़ हाईएस्ट डेथ रेट छत्तीसगढ़, और लोएस्ट डेथ जो है दिल्ली। लोएस्ट डेथ रेट लोएस्ट डेथ रेट दिल्ली। पहला पॉइंट चल रहा है, चौथा चल रहा है ना? जी सर। जी सर। हाँ सर, IMR का चौथा। तो ये इसमें जगह नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में इसका एक लाइन और लिख लीजिए। इन 2018 in 2018 an estimated 88,2000 an estimated 88,2000 children under 5, children under 5
Yes. Died in India. In 2018, an estimated 18 into in 2018 estimated that 5 years died in India. The highest in the world. कितना पॉइंट हो गया? 4 कंप्लीट हो गए। इसमें चित्र भी बताना है, हड़बड़ा के खत्म नहीं कर रहे हैं, ये कंटिन्यूड रहेगा नेक्स्ट दिन, ठीक है? जी सर। ओके इट विल बी प्रणाम सर। कंटिन्यूड इन नेक्स्ट क्लास, समझ गए? जी सर। बहुत महत्वपूर्ण है, ये यहाँ का एक पार्ट है और इंडिपेंडेंट भी आपको लिखने के लिए आ जाएगा, तो एज ए क्वेश्चन आंसर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है, कुछ चित्र है, डायग्राम है, जो अधिक टाइम चाहिए उसके लिए, और अब हम लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं इसके आंकड़ा के चक्कर में। तो यहाँ तक आप लोग, कल हम आपसे पूछेंगे और आप लोग जवाब दीजिएगा, कितना आदमी सही बोलता है देखेंगे, कोशिश कीजिएगा याद करने का, खेल खेल में याद हो जाए बेहतर है, समझे उद्देश्य? यस सर। उदय, सुनीता, जी सर। मोतीलाल, हेमंत, जो लोग हैं कुछ सेक्शन अपना में बांट लेके याद कीजिए। कोई 0.1 याद कीजिए, कोई 0.2 कीजिए, कोई 0.3 कीजिए, कोई 0.4 कीजिए। इस तरह से हर एक आदमी जाएगा, ठीक है? तो कल के लिए थैंक यू। प्रणाम सर।